greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim. Welcome to Dr. Najam's lectures. It is the second part of the anatomy and histology of the neuron. So, in the previous part, our first part, we have described the general introduction towards the nerve tissue and general introduction towards the neuron. So, in this video, we will learn about the cell body of the neuron. As I have already told you that the cell body of a neuron is also known as what? Is also known as the soma. Or cell body of the neuron is also known as the perichiron. Perichiron. So what is a cell body? A cell body is of neuron is also known as the soma. It is also known as the perichiron. If I am drawing the structure of a neuron, look at this structure. These structures are considered to be the dendrites, and this is single elongated structure is known as the axon, and this structure is known as the cell body. So what is the cell body? A cell body of a neuron is also known as the soma, also known as the perichiron. It is a structure in which nucleus and cytoplasm are present. Okay? So it contains the nucleus and the cytoplasm. Nucleus should be present into the center of the neuron, while cytoplasm is present around the nucleus. This is the cell body of the neuron. Basically, this cell body of a neuron is primarily serve as a nourishing center for the neuron. Okay? And its processes. In the previous video, I have told you that we have some kind of tissues. They are considered to be the glial cells. Glial cells. And what is the function of these glial cells? To protect, nourish, to maintain the nerve cell and its processes. But along with that, in the neuron, the body of the neuron, or the cell body of the neuron, is considered to be the nourishing center for the neuron. Got it? Okay. It also supplies the nutrients and macromolecules to the different processes of the cell or neuron. Okay. As I have told you that these dendrite and this axon is considered to be what? It considered to be the processes of the neuron, and it is providing the different kind of the organelles and macromolecules to these kind of the process of the cell. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो सेल बॉडी है एक्सान को क्यों ऑर्गेनेल्स दे रही हैं? अब होता क्या है, आपने न्यूरोट्रांसमीटर में आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्या होता है अगर यहाँ पे एक्सान के इस पार्ट के अंदर, साइनेप वाले पार्ट के अंदर एक्सान की क्या हो रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है. अब आपको पता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस. अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, या न्यूरो ट्रांसमीटर को रीएप्टेक्ट भी करना हो सकता है, या न्यूरो ट्रांसमीटर को सेंड करना भी हो सकता है. उन सब प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए. अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि एनर्जी कम हो गई. अब आपको पता है कि एनर्जी कम हो गई तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन चाहिए. तो ये सेल बॉडी क्या करेगी? इस पार्ट को क्या करेगी? माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोवाइड करेगी और आपके सेल्स भी प्रोवाइड करेगी. तो प्राइमरी ये सर्व क्या करती है? नॉरिशिंग सेंटर सर्व करती है. लेकिन ये और भी क्या करती हैं? इट सप्लाइज द ऑर्गेनेल्स एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स टू द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरॉन. अब ये कैसे सर्वाइव करती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होती है सेल बॉडी टू द एक्सान? ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर में, जो कि होगा फिजियोलॉजी ऑफ द न्यूरॉन. उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे एक मॉलिक्यूल्स, कैसे मैक्रोमोलेक्यूल्स और कैसे माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सान एंड फ्रॉम एक्सान टुवर्ड्स द सेल बॉडी. ओके. एंड इट इज़ वेरी रिसेप्टिव टू द एक्सक्रीटरी और इनहिबिटरी स्टिमुलाई. Basically, stimuli comes from one neuron towards another neuron, because neurons have connection between each other by means of synapses. Okay, let's suppose here we have a neurotransmitter. It is a excretory stimulatory neurotransmitter. This
neurotransmitter is for to stop any kind of process or stop any kind of thinking. So it is very receptive to that kind of stimuli that is given to it by mean of axon or by mean of another neuron. Okay. If we talk about the cell body size, basically the cell body size is vary. अब सबसे छोटी से छोटी हम सेल बॉडी की साइज़ की बात करेंगे तो सेल बॉडी की साइज़ क्या होती है आपकी 4 nm होती है। अगर 4 nm वाली डायमीटर वाली अगर हम देखेंगे सेल बॉडी किस में पाई जाती है, आपकी पाई जाती है ग्रेन्यूल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक सेल्स हैं जिसके अंदर क्या होती है 4 nm वाली ये सेल बॉडी पाई जाती है न्यूरॉन्स की। अगर हम लार्जर सेल बॉडी की बात करें तो वो कितनी होती है, वो होती है 135 nm की। वो किस में पाई जाती है एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइन। You got this point? Okay. If I am talking about the structure or shape of the cell body, that what is the shape of the cell body? Basically, this shape of the cell body depends upon the number of orientations of cell processes into the neuron. For example, we have a unipolar neuron, we have bipolar neuron, we have multipolar neuron, also we have pseudopolar neuron. We are just taking example of 3 neurons, the unipolar neuron, bipolar neuron and multipolar neuron. Okay. In the unipolar neuron, the cell body is generally a globular structure. The shape of cell body into the unipolar neuron is what? It is just a globular structure. And the shape of cell body in a bipolar neuron is generally elongated or fusiform in shape. And in multipolar neuron, it is satellite or pyramidal spherical shape. Okay. For example, unipolar neuron, this is the unipolar neuron, this is the cell body, okay, this is the axon and these are the axon terminal. Bipolar neurons means the neuron having 2 main poles, okay, this is the bipolar neuron. So this is a globular structure, this is the elongated structure, okay. This is what? This is the elongated. This bipolar neuron may be structured just like this. This is elongated structure. Okay. In a multipolar neuron, it's generally a satellite in shape or pyramidal in shape. It's looking like just like this. And these are some dendrites. And these are some dendrites. These are dendrites. And these are dendrites. This is the axon. And this is the cell body. This is the satellite shape of the cell body. So this was all about the cell body. You got this point? If we talk about the cytoplasm of the neuron, basically the cytoplasm of neuron contains the cell organelles, nucleons and cytoskeletal materials. So what type of organelles are present into the neuron? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके न्यूरॉन के अंदर कौन से सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो न्यूरॉन्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल का रोल किसका होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इस वजह से हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? इट इज़ अ कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गेनेल, it is a conspicuous organelle which is found into the neuron. Okay. So what type of organelles are present into the neuron? The rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi bodies. So these all type of organelles are present into the body of the neuron. Okay. The most conspicuous organelle is the rough endoplasmic reticulum. Which is the most conspicuous organelle into the body of the neuron? It is considered to be the rough endoplasmic reticulum. And also free ribosomes are present in high amount. अब देखें यहाँ पे हाई लेवल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद हैं और उसके साथ भी हाई लेवल ऑफ फ्री राइबोसोम्स भी मौजूद हैं। अब ये किस चीज़ की अलामत है? एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस की। जब देखें हाई लेवल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ठीक है,
और साथ में फ्री राइबोसोम्स हो, जाहिर सी बात है इन दोनों का काम क्या है, प्रोटीन को बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन को करना। अब ये दोनों अगर किसी भी न्यूरॉन के अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद हैं तो होगा क्या, वहाँ पे एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनेंगे। क्लियर? ओके। एंड द सेंसेस ऑफ प्रोटीन इज आल्सो फॉर लोकल यूज, लोकल यूज के भी लिए हो सकती है। लेट सपोज कहाँ पे मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, कहाँ पे किसी ऑर्गेनेल को कमी हो गई, या कहाँ पे कोई भी डैमेजिंग हो गई, तो वहाँ पे भी ये हो सकती हैं, और फॉर द ट्रांसपोर्ट यूज कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी प्रोटीन होती है न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। जब हम फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि कौन सी डायनिन जैसे प्रोटीन हो गई, ठीक है। तो ये प्रोटीन कैसे एक न्यूरॉन के अंदर काम करती हैं और कैसे एक ट्रांसपोर्ट वाला काम करती हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें ये बताऊंगा। ओके। इन स्टैंड अंडर एलएम, एलएम का मतलब क्या है, लाइट माइक्रोस्कोपी। अगर हम स्टैंड करें लाइट माइक्रोस्कोपी में, द हाई लेवल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पॉलीजोम्स अपीयर्स एज अ क्लम्प्स ऑफ द बेसोफिलिक सब्सटेंसेस। अब देखिए मैंने आपको बताया कि एक न्यूरॉन की साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद क्या होता है, सबसे ज़्यादा मौजूद होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन हाई है, और साथ में फ्री राइबोसोम्स जो हैं उनकी भी कंसंट्रेशन हाई हैं, या जिनको हम पॉलीजोम्स भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलीजोम्स भी बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और साथ में पॉलीजोम्स जो हैं वो अपीयर्स लाइक क्लम्प्स ऑफ बेसोफिलिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं, क्लम्प्स की फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि बेसोफिलिक सब्सटेंस हो तो उसको हम नाम देते हैं नेसल बॉडी का। क्या नाम देते हैं, नेसल बॉडी का। अब नेसल बॉडी को हम और क्या कहते हैं, क्रोमेटोफिलिक सब्सटेंसेस, क्रोमेटोफिलिक सब्सटेंस। सो इफ आई एम giving a definition of the nasal body, that what is the nasal body? Basically a nasal body is a distinct granular body of variable size that occur in the cell body and dendrites. Basically this nasal body is only found in the cell body and the dendrites but not found in the axon. You must have to remember this point, that the nasal bodies are not found in the axon. And basically this nasal body is composed of RNA and polyribosomes. And if we talk about the scanning, किसी भी हम टिश्यूज़ की स्कैनिंग करते हैं तो इसके लिए जो हम स्कैनिंग करते हैं वो हम मिथाइलिन ब्लू की करते हैं। किसकी करते हैं, मिथाइलिन ब्लू की। और स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस हमें मिलती हैं इसकी सेल्स के अंदर। तो ये है नेजल बॉडी के मुतालिक। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ नेजल बॉडी डिपेंड्स अपॉन अ टाइप एंड फंक्शन ऑफ अ न्यूरॉन सच एज हाई इन अ मोटर न्यूरॉन। मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली यहाँ पे चेन बन रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है, राइबोसोम ज़्यादा है, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और साथ में ये क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, तो हम इसको बोलते हैं नेजल बॉडीज। अब ये भी क्या है, नेजल बॉडी डिपेंड करते हैं कि एक न्यूरॉन के अंदर अगर फंक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ये नेजल बॉडीज ज़्यादा होंगी, अगर फंक्शन कम होगा तो नेजल बॉडीज कम होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नेजल बॉडीज पाई जाती हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं, आपके मोटर न्यूरॉन्स के अंदर। क्लियर? ओके। तो बेसिकली इसी न्यूरॉन के अंदर मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का तो हर जगह पे काम सही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है, इट इज़ जनरली रॉड लाइक और बीन शेप्ड ऑर्गेनेल, each consisting of double membrane, outer membrane is smooth, inner membrane is folded, enfoldings are crusty, fluid present inside skull matrix. Mitochondria break the food for the production of energy. As the producer of energy, it is considered with the powerhouse of cell. अब नॉर्मल सेल हूँ आपका लिवर का, किसी भी चीज़ का, ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। न्यूरॉन के अंदर भी ये क्या करती है, सेम ही काम करती हैं। एटीपी की फॉर्मेशन करवाती हैं, आपकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ती हैं, उनको एनर्जी देती हैं, ये सेम काम है। लेकिन अगर हम अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी डिपेंड करती हैं। देखिए, एक सेल जो लगातार काम करता रहता है और दूसरा सेल है जिसका काम सिर्फ थोड़ा सा है,
तो उस जो थोड़ा सा है, जिसका काम थोड़ा सा है, वहाँ पे क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गई। जहाँ पे काम ज़्यादा है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज़ की, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी है। अब सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे इंटरकनेक्टेड हैं मैं आपको बताता हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है, राइबोसोम ज़्यादा है, क्या हो रही है, एक्टिव प्रोटीन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। एक्टिव प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और साथ ही साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या कहते हैं फ्री राइबोसोम्स आपस में क्लम्प्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, बेसोफिलिक सब्सटेंस की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नेजल बॉडीज का नाम देते हैं। अब देखें, अब एक्टिव प्रोटीन फार्मेशन ज़्यादा करवा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो प्रोटीन को हम पैक भी करेंगे। तो वो पैक कौन करेगा, आपके गोल्जी बॉडीज करेंगे। अगर गोल्जी बॉडीज की प्रोडक्शन उसी सेल्स के अंदर ज़्यादा होगी जिस सेल्स के अंदर एक्टिव प्रोटीन प्रोडक्शन की ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे गोल्जी बॉडीज ज़्यादा, और जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा वहाँ पे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ज़्यादा। क्लियर? द डेवलप्ड गोल्जी बॉडीज रिक्वायर्स फॉर द पैकिंग ऑफ द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने वो बात बता दी। और है लार्ज number of lysosomes correlates with the high turnover of membrane and other cell components। और यहाँ पे lysosomes भी मौजूद होते हैं। lysosomes का एक पर्टिकुलर फंक्शन है सेल्स के अंदर जो हर सेल्स के अंदर होता है, यहाँ पे भी यही होता है। और यहाँ पे एक इंडिकेटिंग पॉइंट कौन से कि वो कोरिलेट करता है किससे, हाई टर्नओवर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड साथ में अदर सेल्स कंपोनेंट्स पे। और अगर हम आते हैं दूसरे पार्ट्स पे जिसको हम नाम देते हैं इनक्ल्यूजन का, क्या नाम देते हैं, इनक्ल्यूजन का। ओके, सो बेसिकली इनक्ल्यूजन जो न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है वो तो हमें पता है कि लिपोफ्यूजन पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन इनक्ल्यूजन है क्या? बेसिकली इट इज अ एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज इंक्लूजन? इंक्लूजन इट इज एग्रीगेट्स ऑफ द प्रोटीन associated with many neurodegenerative diseases। Okay, what is the inclusion? Inclusion basically it is the aggregate of the proteins. It is the aggregate of proteins associated with the many neurodegenerative diseases। Okay, यह neurodegenerative disease से रिलेटेड है। लेकिन जो कॉमन अगर इंक्लूजन की हम बात करें जो नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, आपके लिपोफ्यूजन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं आपके, ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, लिपोफ्यूजन पिगमेंट्स व्हिच अकर्स इन द फॉर्म ऑफ येलोइश ब्राउन ग्रेन्यूल्स। येलोइश ब्राउन ग्रेन्यूल्स। ओके, लिपोफ्यूजन क्या है? एक किस्म का कंपाउंड है, येलो पिगमेंट कंपाउंड है, ग्रेन्युलर कंपाउंड है जो किस चीज़ के कंपाउंड किससे बना हुआ है, लिपिड कंटेनिंग कंपाउंड से बना हुआ है। ओके, और लिपिड कंटेनिंग रेजिड्यूड्स भी कहते हैं हमें जो लाइसोसोमल डाइजेशन के होते हैं, रेजिड्यूड्स ऑफ लाइसोसोमल डाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, दिस पिगमेंट्स रिप्रेजेंट द रिमार्क्स ऑफ द लाइसोसोमल एक्टिविटी। अब ये जो पिगमेंट हम पढ़ रहे हैं लिपोफ्यूजन पिगमेंट, ये किस चीज़ की अलामत है, रिमार्क्स ऑफ द लाइसोसोमल एक्टिविटी एंड इट्स अमाउंट इंक्रीज विद द एज। इसका अमाउंट इंक्रीज विद द एज होता है जिसको हम वियर एंड टीयर भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इंक्लूजन। अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। देखें, साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है, एक सेल को पर्टिकुलर शेप देना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम मौजूद है, उस स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है, हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, हमारी बॉडी को पर्टिकुलर शेप देना और मूवमेंट में हेल्प करना। तो ऐसे ही साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स द स्केलेटन और स्ट्रक्चर दैट इज सपोर्टिंग टू द सेल। ओके, अब ये साइटोस्केलेटन जो न्यूरॉन्स के अंदर पाया जाता है वो कंसिस्ट करता है न्यूरोफिलामेंट्स पे। The cytoskeleton of the neurons basically consists of what? Consists of the neurofilaments and microtubules. Tubules is a protein, okay? Microtubules, which is randomly scattered in the cytoplasm. अब ये जो साइटोस्केलेटन है वो किस चीज़ का बना हुआ है, आपके न्यूरोफिलामेंट्स का और टेबुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है, सारे आपका जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे डिसअपियर्ड है, वहाँ पे फैला हुआ है, डिस्पर्स्ड है, सॉरी। ओके,
सो द न्यूरोफिलामेंट्स आर, अब ये जो न्यूरोफिलामेंट्स हमने पढ़े ये क्या हैं? बेसिकली द न्यूरोफिलामेंट्स आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. व्हाट आर न्यूरोफिलामेंट्स? न्यूरोफिलामेंट्स आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैविंग अ एवरेज डायमीटर ऑफ द 10 nm, जिनका डायमीटर कितना होता है? 10 nm का होता है. अब हम बात करें न्यूरोफिलामेंट्स की. बेसिकली दीज न्यूरोफिलामेंट्स आर नॉट विजिबल अंडर द LM. LM मैंने आपको बताया कि लाइट माइक्रोस्कोपी में ये हमें न्यूरोफिलामेंट्स लाइट माइक्रोस्कोपी में नजर नहीं आते हैं. ओके, बट अंडर द इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, अगर हम केमिकल्स का इफेक्ट डालते हैं यूज फॉर द टिश्यू फिक्सेशन, दीज फिलामेंट्स बिकम एग्रीगेटेड टू फॉर्म अ बंडल्स. And now these neurofilament bundles are called the neurofibrils that can be seen under the LM. Okay? अब होता क्या है? बेसिकली ये न्यूरोफिलामेंट्स हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में नज़र नहीं आते. ठीक है, तो हम डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ करते हैं. कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं? हम केमिकल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो केमिकल्स यूज़ करने के बाद क्या होता है, जिसको हम टिश्यू फिक्सेशन बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके बंडल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एग्रीगेटेड हो जाते हैं, उनके बंडल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोफिब्रिल्स. अब ये न्यूरोफिब्रिल्स हम क्या कर सकते हैं? लाइट माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं. ओके, अब अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट साइटोप्लाज्म की बनाते हैं. दैट कैन एंटर्स इनटू द एक्सॉन एंड रन ओवर इट्स वोल लेंथ. बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. ये एक्सॉन्स के अंदर भी एंटर हो सकता है और इट्स की वोल लेंथ में भी एंटर होगा. इसकी वोल लेंथ में क्यों इंक्रीज हो रहा है? अब आपको मैंने बताया कि ये क्या है? साइटोस्केलेटन का एलिमेंट है, मतलब कि एक्सॉन को भी एक पर्टिकुलर इलांगेटेड शेप है, एक पर्टिकुलर शेप है. वो शेप कौन दे रहा है? आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स दे रहे हैं, जो कि एक साइटोस्केलेटन है. एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड अदर एलिमेंट्स फ्रॉम वन रीजन टुवर्ड्स अनदर रीजन. अब देखें साइटोप्लाज्म के अंदर ये साइटोस्केलेटन है, तो जाहिर सी बात है ये भी हेल्प करता है किस चीज़ पे? movement of molecules and movement of some important elements and movement of the proteins from one region of the neuron towards an other region of the neuron. So that's all about the cytoplasm of the cell body and the cell body.